Hello everyone. I'm Surbhi Khurana, counseling psychologist from Shritara School of Wellbeing. Before we begin, I have a small request. Please turn on your camera if possible. We've shared this earlier too, but I'll remind you why this matters. जब आपका कैमरा ऑन होता है, you automatically listen with more attention and stay away from distractions happening around you. But when it is off, it is very easy to start doing something else and then you miss out on the flow of the session. Since you've taken out time to be here today, it clearly means this is important for you. So why not give it your full attention? And Hamare Devi, when we see you listening, it encourages us to keep creating more engaging sessions for you. Now, for those of you who are joining for the first time, let me briefly tell you about Shritara School of Wellbeing. This was founded in 2019 by Mrs. Shanti Pahwa, who's a retired associate professor from Delhi University and also a life coach. With her vision, Sri Tara became a place where people can find guidance, support, and practical tools to live with more clarity and awareness. At Sri Tara, we are a team of psychologists, counselors, and life coaches. Together, we work with one simple mission to help you experience life in a better way, whether it's understanding your emotions, dealing with stress, improving relationships, or just learning how to connect with yourself more deeply. We believe that healing starts from within. Now let's talk about today's session, जिसका टॉपिक है your relationship with yourself matters the most. In a world where success is often measured by money, achievements, and outward stability, many still find themselves quietly struggling with emptiness, loneliness, confusion about what truly matters. This webinar is an invitation to pause, to look within, and to understand the deeper layers of life beyond just doing well. Together, we will explore the real meaning of relationships, emotional awareness, and inner connection. Because lasting peace doesn't come from controlling life on the outside, but from understanding what's happening inside. If you've ever felt that something is missing despite having everything, this conversation is for you. Let's begin with a question that we've received. ये हमें एक 45-year-old मेल ने भेजा है. वो कहते हैं, अगर पैसा कमाने को सक्सेसफुल कहा जाए तो कह सकते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ. डिस्पाइट ऑल द वेल्थ एंड कंफर्ट्स इन लाइफ मैं एम्प्टीनेस एंड लोनली फील करता हूँ. समझ नहीं पाता कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है. हाँ सुरभि, एक्चुअली लोगों के पर्सनल लाइफ में ना बहुत उथल पुथल है, बहुत डिस्टरबेंस है। एक सर्वे हुआ था जिसमें जो लोग अपने 20s में थे उनसे पूछा गया कि उनके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो किसी ने कहा कि कैरियर, तो किसी ने कहा पैसा कमाना, तो किसी ने कहा एक अच्छा घर हो रहने को, किसी ने कहा ट्रेवल, तो किसी ने कहा दोस्ती सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी ने कहा कि उनकी हॉबीज ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, किसी ने कहा कि फन इम्पोर्टेंट है। फिर उन्हीं लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया और 20 साल के बाद उन्हीं लोगों से फिर पूछा गया कि आप लोगों की लाइफ में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादातर लोगों का कहना था कि रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट है। जिंदगी में हम सभी एक दिन यह महसूस करते हैं कि पैसा अगर थोड़ा सा कम भी कमा लिया तो कोई बात नहीं, पर जिंदगी में ऐसे सही लोग चाहिए जिनके साथ हम रह सकें। रिलेशनशिप अच्छे हैं तो लाइफ में सुकून है, शांति है। और अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आपने कितना भी पैसा क्यों ना कमा लिया हो, आप सुख में सुकून में नहीं होते। यानी धन से समृद्धि तो बहुत आ जाती है, लेकिन रिश्तों में अगर उथल पुथल है तो सुख और शांति नहीं होती। इसका मतलब रिलेशनशिप्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जिनके पास अच्छे रिलेशंस हैं या कहें जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं वो जीवन में सेटिस्फाइड एंड हैप्पी हैं. देखिए, रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन ये एब्सोल्यूट बात भी नहीं है, क्योंकि तुम हो तो रिश्ते हैं, रिश्तों के होने से तुम नहीं। खुद को खोकर रिश्तों को बचा भी लिया तो उनकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि इन्हीं रिश्तों में सुख देने की ताकत है, लेकिन दुख भी सबसे ज्यादा इन्हीं रिश्तों से मिलते हैं। रिलेशनशिप अच्छे होने का ये मतलब कतई नहीं है कि जो भी सामने हो, जैसा भी हो, उससे तुमने रिश्ता बनाकर ही रखना है, या फिर अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा तो तुरंत उसे छोड़ दो। नहीं, इन दोनों के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो रिश्तों के लिए किया जा सकता है।
और रिश्ता अच्छा है या नहीं, ये दो लोगों की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। एक ही कपल में अगर दोनों में से एक अपनी बात खुलकर कहता है और दूसरे से अपनी बात मनवा भी लेता है अक्सर, और दूसरा दबकर रहता है, तो उसी एक रिश्ते को एक कहेगा कि हमारा रिश्ता तो सही चल रहा है, और दूसरा जो दब जाता है उसे वो रिश्ता सही नहीं भी लग सकता। और ये वक्त के साथ साथ बदलता भी है। जो रिश्ता आज अच्छा है कल खराब भी हो सकता है, और किसी खराब रिश्ते को अच्छा भी किया जा सकता है। वैसे भी दो लोगों के बीच रिश्ते का अच्छा होना तो दोनों पर ही डिपेंड करता है। तो तुम्हारा रोल उसमें 50% ही तो है। असल में सबसे ज्यादा तो ये मैटर करता है कि तुम्हारा अपने साथ कैसा रिश्ता है, और अपने साथ रिश्ता अच्छा होना 100% तुम पर ही डिपेंड करता है। इस तरह से रिश्तों की नेचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर रिश्ता चाहे खुद के साथ हो या किसी और के साथ, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार अंदर से बाहर आता है। जो आपके अंदर है वही तो बाहर आएगा। तो पहले हमें अपने अंदर काम करना होता है, यानी पहले खुद पर काम करना होगा। और खुद पर काम करने का मीनिंग यही है ना, कि हम खुद को जाने, और उसके लिए हमें अपने ही इमोशंस पर काम करना होता है। हाँ, खुद पर काम करना यानी अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। किसी की लाइफ में कोई सेटबैक आ जाए या कोई भी दुख परेशानी आ गई, तो उस सिचुएशन से कैसे कॉप अप करना है, कैसे उस सिचुएशन से निकलना है, ये सब किसी पढ़ाई या किसी कोर्स की किताब में शामिल नहीं होता। कभी कोई नहीं बताता कि फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की कोई भी बात किसी किताब में डाली ही नहीं गई। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपने मन के स्वभाव को समझें, जीवन के स्वभाव को समझें, और रिश्तों की नेचर को भी समझें, और अपने अंदर के इमोशंस को मैनेज करना सीखें, अपने मूड स्विंग्स को मैनेज करना सीखें। किसी ने पूछा है कि अगर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता हूँ, अपनी आवाज और अपने लहजे यानी अपनी टोन को भी कंट्रोल कर लेता हूँ, और सभी के साथ पोलाइटली बात करता हूँ, तो डज दैट मीन आई एम इमोशनली लिटरेट? देखो, ये जो कह रहे हैं ना, वो इमोशनली लिटरेसी नहीं है, वो इमोशनल कंट्रोल है। इन दोनों के फर्क को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दिन मेरे पास कोई जानने वाले मुझसे मिलने आए। उनका नाम विनोद है, जो हमने बदल दिया है। वो कहने लगे कि मैंने पहले सोचा कि गुस्से पर कंट्रोल कर लेना, अपनी आवाज को संभाल कर रखना, यानी सभी के साथ नम्रता से पेश आना, कोई गलत बात ना बोलना, शांत रह पाना ही मेच्योरिटी है। पर इस सब से मैं बाहर से तो खुद को संभाल रहा था, लेकिन अंदर से मैं बहुत परेशान, चिड़चिड़ा और टेंशन में रहने लगा था। विनोद का कहना था कि मेरी वाइफ को ये सब दिख जाता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं ना तो ऊंची आवाज में बात करता था, ना ही कुछ गलत कहता था, फिर भी माहौल भारी हो जाता था। मेरी वाइफ चुप हो जाती थी, उसका चेहरा बदल सा जाता था, हमारे बीच कनेक्शन खत्म हो जाता था। और मैं सोचता था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सिचुएशन बार बार आती थी। विनोद ने बताया कि एक दिन बातचीत के दौरान मेरी वाइफ ने मुझे एक बात कही। उसने कहा कि तुम गुस्सा नहीं कर रहे होते, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने इमोशंस को संभाल पा रहे होते हो और तुम इमोशनली सेफ होते हो। तब मैंने उसे बताया कि तुम इमोशनल रेगुलेशन को बिहेवियर कंट्रोल समझ रहे हो, यानी अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने को ही इमोशनल रेगुलेशन समझ रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम चिल्ला नहीं रहे, आराम से बोल रहे हो या चुप हो जाते हो, तो तुम अच्छा करते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम खुद को चिल्लाने से या गलत बोलने से रोक पा रहे हो, तो तुम नुकसान होने से बचा रहे हो। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि तुम्हारी ये चुप्पी शांति नहीं है। ऐसी चुप्पी तो कभी कभी बिना शब्दों के भी टेंशन ही देती है। इस पर विनोद का कहना था कि हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैंने एहसास किया है कि मेरा शांत चेहरा सच में शांत नहीं होता था। कभी कभी इस सबसे मेरी खुद से भी इमोशनल दूरी बन जाती थी, और इस सबसे मेरी अपनी वाइफ से भी दूरी बन जाती थी। इसके अलावा हमारी बातचीत भी बंद हो जाती थी, और मैं उलझन में चला जाता था कि जब मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया, फिर भी ये सब गलत क्यों हो रहा है। हाँ, राइट। सेल्फ कंट्रोल हमेशा इमोशंस का सही रेगुलेशन नहीं होता। रादर ये तो खुद से और आसपास के अपनों से दूरी बनाना होता है, और इसका इफेक्ट ऑपोजिट पड़ता है। यानी इस तरह से इमोशंस को कंट्रोल करने के साथ रहने वाला अपने ही पार्टनर, अपने ही बच्चे आपसे दूरी महसूस करने लगते हैं, और खुद को अकेला फील करने लगते हैं। हाँ, असल में बदलाव तो तब आता है जब समझ आ जाए कि रियल इमोशनल रेगुलेशन सिर्फ अपने गुस्से को रोकना नहीं है,
बल्कि अपने इमोशंस को महसूस करना है, फील करना है और उन इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है। ऐसा करने से हम खुद से और अपनों से दूर ना होकर जुड़े रहते हैं। और जब भी अपने अंदर तनाव, दूरी या असहजता महसूस हो, तो इसका मतलब तुम काम नहीं हो, यानी शांत नहीं हो, बस काम दिखने की कोशिश कर रहे हो। So, you mean to say that whenever you're feel whatever you're feeling, you should truly feel it and also tell the other person what you're feeling. इससे whole atmosphere change हो जाता है. आपकी वाइफ को गुस्सा नहीं करना पड़ता एंड सॉरी आपकी वाइफ को गेस नहीं करना पड़ता what you're going through, and she doesn't just experience control, she's also able to feel your truth. हाँ, इससे तुम ना तो केवल खुद से जुड़े रहते हो, बल्कि उससे, अपनी वाइफ से भी जुड़े रहते हो। तुम्हारा माहौल सेफ रहता है और बातचीत भी जारी रहती है। तो इमोशनल रेगुलेशन दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि सामने वाले को बिना अपनी भावनाओं का बोझ दिए उसके साथ इमोशनली जुड़े रहने के बारे में है। और इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिवाय तुम्हारे किसी और के ऊपर नहीं है। अगर तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो सिर्फ अपने लिए, तुम किसी और के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकते इस बात की। यानी सभी अपने लिए आप जिम्मेवार हैं, ना तुम किसी और के लिए जिम्मेवार हो, ना ही कोई तुम्हारे लिए जिम्मेवार है। आपने कहा कि हम अपने लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन हम जब जब भी परेशान होते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं, तो हमें तो यही लगता है कि ये सब किसी दूसरे की वजह से हो रहा है। उस टाइम हम कैसे अपना ध्यान दूसरे से हटाकर खुद पर लाएं? हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि जब तुम दूसरों के दोष देखते हो, तो तुम दूसरों के दोषों को बड़ा करके देखते हो। और बड़ा करके देखने में मन की को बहुत अच्छा लगता है। इससे ज्यादा रस किसी में नहीं है कि दूसरे तुमसे ज्यादा खराब हैं, ज्यादा बुरे हैं, ज्यादा पापी हैं। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि दोष केवल तुम्हारा है, दूसरे का कोई दोष है ही नहीं। लेकिन ध्यान या तो तुम अपने दोषों की तरफ दे सकते हो, या फिर दूसरों के दोषों की तरफ दे सकते हो। जो दूसरों के दोषों की तरफ ध्यान देता है, वो अपने दोषों की तरफ ध्यान दे ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब तुम दूसरे पर ध्यान देते हो, तो खुद को भूल जाते हो। लेकिन दूसरे के दोष देखने से कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि दूसरे इंसान पर तो तुम काम नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हो। इसलिए दूसरे के दोषों पर ध्यान ना दो, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा फायदा सिर्फ तुमसे होगा। बट इफ वी ऑलवेज कीप फाइंडिंग फॉल्ट्स इन आवरसेल्व्स एंड खुद को ही ब्लेम करते रहेंगे, देन हम गिल्ट में नहीं आ जाएंगे? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर तुम सेल्फ ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, तो बुद्ध की ये बात याद रखो कि अपने दोष देखने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम अपने दोषों को, अपने ही पापों को देखो और रिग्रेट करने लगो या दुखी हो जाओ। और ना ही बुद्ध ये कहते हैं कि तुम अपने पुण्यों को देखो और उछल उछल कर चलो कि देखो मैं तो कितना पुण्य आत्मा हूं। बुद्ध कहते हैं कि तुम खुद का अवलोकन करो। अवलोकन का अर्थ है ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी कर रहे हो, जो भी कह रहे हो, उसे देखना है तटस्थता से, यानी बिना किसी निर्णय के, इनडिफरेंट होकर। जो भी तुम कर रहे हो उसे सिर्फ देखो अवेयरनेस से। ना ये कहो कि ये बुरा है, ना ये कहो कि ये भला है, ना ये कहो पाप है, ना ये पुण्य है। तुम कोई भी निर्णय मत लेना, इवेल्युएट मत करना, सिर्फ देखना। जैसे कोई आदमी रास्ते के किनारे खड़ा हो जाए और भीड़ चलती जाए और वो बस देख रहा है। ऐसा है जैसे कोई घास पे लेटा है, सिंपली देख रहा है, नॉट जजिंग। जज नहीं बनना. The more neutral and detached you become, the more you will realize that you are separate from sin and virtue. और ये जो सेपरेशन है ना, इसी का नाम है मुक्ति, यही मोक्ष है। अवलोकन से तुम सीधे खुद तक पहुंच सकते हो। और अगर दूसरों के दोष देखते रहोगे, तो तुम कभी अपने तक पहुंचने की दूरी को तय ही नहीं कर पाओगे। और फिर कितने हैं दूसरे, तुम किस किस का दोष देखोगे, किस किस पर विचार कर पाओगे, किस किस के लिए हंसोगे, किस किस की बात पर रोओगे, किस किस की प्रशंसा करोगे और किस किस की निंदा करोगे। आपने कहा कि दूसरे के फॉल्ट मत देखो, ओनली अपने ही फॉल्ट को देखो. ये बात बहुत अच्छी है, बट हाउ डू वी अप्लाई दिस इन आवर लाइफ? देखिए, अच्छी अच्छी बातें और अच्छा अच्छा ज्ञान तो तुमने बहुत सा इकट्ठा कर रखा है। और ये ऐसे है जैसे तुमने बहुत सारा भोजन कर रखा हो। बहुत अधिक भोजन करने से शरीर बीमार हो जाता है। इकट्ठा किया हुआ ज्ञान ऐसे है जैसे तुमने भोजन तो बहुत कर लिया हो, लेकिन पचा ना सके हो, उससे तो तुम बीमार पड़ोगे ही। वैसे ही जैसे पचा हुआ भोजन तो जीवन देता है, बल देता है, एनर्जी देता है, लेकिन अनपचा भोजन जीवन को नष्ट करता है, जीवन
ज्यादा भोजन शरीर की व्यवस्था पर बोझ हो जाता है। ऐसे हमने ज्ञान बहुत इकट्ठा कर लिया है जीवन में, लेकिन ज्ञान को जिया कम है। बुद्ध कहते हैं थोड़ा जानो लेकिन उसे जीवन में उतारते जाओ। थोड़ा भोजन करो लेकिन उसे ठीक से पचाते जाओ। ठीक से पचाओगे तो भोजन तुम्हारा रक्त मांस मज्जा बनेगा, यानी उससे तुम्हारा ब्लड और मसल्स बनेंगे। और जो भोजन अनपचा पड़ा रहेगा वो जहर बनेगा, एसिड बनता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में वो ज्ञान जिसे तुम जानते हो और जीवन में उतारते नहीं हो, वो जहर बन जाता है। हम समझ भी लेते हैं कोई बात, हमें लगता भी है कि ये तो साफ साफ समझ में आ गई, पर अगर हम उसका उसी क्षण उपयोग करने लगेंगे तो बात निखरती चली जाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि कल यूज करेंगे, इसे परसों यूज कर लेंगे, अभी समझ में आ गई है, संभाल कर रख लेते हैं, लिख लिख कर भी रख लेते हैं। हम इस लिखने को और पढ़ने को ही बड़ा काम समझ लेते हैं और बड़े खुश होकर बस लिखते और पढ़ते रहते हैं, पर यूज करने से बचते रहते हैं। जबकि लिखने और पढ़ने में तो टाइम भी लगता है, पर जीवन तो हम जी रहे होते हैं। और जीते जीते अगर हम तुरंत उपयोग करना सीख जाएं, आचरण में लाना सीख जाएं, यानी अपने बिहेवियर में लेना सीख जाएं, तो क्रांति घटित होगी, यानी रेवोल्यूशन होगा। पढ़ लेना और कहीं भी लिख कर रख लेना और आचरण में डालने को टालना, ये खुद को धोखा देने वाली बात है। जो समझ में आ जाए उसे उसी मोमेंट करना है, क्योंकि करने से ही तो स्वाद आएगा, और स्वाद आने से और करने का मन करेगा, और फिर करने से और स्वाद आएगा। और अचानक एक दिन तुम पाओगे कि जिसे तुम ज्ञान की तरह सोच रहे थे वो ज्ञान नहीं रहा, बिहेवियर बन गया तुम्हारा। जो भी जाना जा सकता है जीकर ही जाना जा सकता है। बेकार की बहस में भी मत पड़ो, क्योंकि बहस भी अक्सर बचने का उपाय है। सारी बात ही यही है कि ज्ञान कैसे बिहेवियर में आए, इसके अलावा और इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है इनर रेवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो भी हम सुने उसे अपनी मेमोरी में ना रखकर उसे अपने बिहेवियर में उतारें, अपना लाइफस्टाइल बना लें, उसी बात के एटमोसफेयर में जिए, तभी कुछ बदलाव आ सकता है, तभी हमारे लाइफ में रेवोल्यूशन घट सकता है। बिल्कुल। और जब तक तुम ये न कर पाओगे तुम पीड़ा में रहोगे, तुम दुख में रहोगे। जब तुम ये कर पाओ तो यही मुक्ति है, यही निर्वाण है। और अगर तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो यही मिनिमम है, और मैक्सिमम भी यही है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि दूसरों को कष्ट देना पाप है, लेकिन मैं कहती हूँ खुद को दुख देना पाप है। जो खुद को दुख देगा वो किसी दूसरे को दुख कैसे नहीं देगा। इस तरह से जियो कि अपने को दुख ना दो। इस तरह से जियो कि मन में ऐसा ख्याल भी ना उठे कि कुछ करना रह गया या कुछ अनकिया रह गया। जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर आएगा। अगर तुम्हारे भीतर गीत है तो तुम वही गुनगुनाओगे, और अगर तुम्हारे भीतर गाली है तो वही बाहर निकलेगी। वैसे भी अपने को ही दुख देना पॉसिबल है, दूसरे को दुख देना संभव ही नहीं है। दूसरे के साथ कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। जब भी दूसरे के साथ कुछ भी करने की कोशिश की, तुमने अपने लिए ही दुख के बीज बोए। हालांकि लोग दूसरे से भी दुख लेते हैं, पर उसमें देने वाले का हाथ कम होता है। यानी देने वाला कारण उतना नहीं होता जितना लेने वाला कारण होता है। लेने वाला तो दुख ले ही लेता है, एक ना दे तो किसी दूसरे से ले लेता है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं? और फिर ये भी कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से सीखें। देखो, ये बात कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, सबसे पहले और सबसे ज्यादा आपको ही पता चलेगी। लेकिन इसके लिए कुछ वक्त तो आपको किसी के साथ चलना होगा और समझना होगा कि हम अपने खुद के लिए खुद की ही नजरों में कितने समझदार बने हैं। क्योंकि हम दुनिया में तो बाद में जीते हैं, पहले अपने भीतर जीते हैं। बाहर जो भी करते हैं उसका जन्म पहले भीतर होता है। तो बाहरी बदलाव तभी हो सकता है जब भीतर कुछ बदले। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से सीखते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो इस ये बात है कि हम सीखें समझें ताकि दिक्कतें ना आए। अगर आप सीखना चाहते हैं और कोई ऐसा है जो जानता है कि क्या बताना है और वो भी बताने को तैयार है, तो आप सीख सकते हैं। पर ज्यादातर सिखाने वाले सिखाने के नाम पर कहते हैं कि समस्याओं को तो साइड में रख दो और अपने मन को कहीं और लगा लो, मेडिटेशन में, सत्संग में, पूजा पाठ में, या किसी भी और विधि में। ये सब खुद को समस्या से डाइवर्ट करना है, और डाइवर्ट होने से समस्याएं खत्म नहीं होती। ये ध्यान इधर उधर लगाने वाली बात है। जैसे कोई शराब पी लेता है ताकि समस्या का ख्याल ही ना आए, ऐसे ही कोई सेवा में घुस जाता है, कोई प्रार्थना में, कोई अपने आप को काम में डुबो लेता है। इसीलिए तो उसे वर्कॉलिक भी कहा जाता है। काम भी एक तरह की शराब ही तो है। लेकिन यहाँ हम इशू पर ही रहते हैं कि आखिर ये इश्यूज, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं, जबकि लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता।
वैसे तो ये फिर तुम्हारी फ्रीडम है कि तुम किससे समझो, लेकिन तुम हमसे सीखो। इसकी वजह ये भी है कि हम सभी टीम मेंबर्स ने यही काम अपने लिए किया है। हमने अपने मन को जाना है, और जाना है जीवन के स्वभाव को, और रिश्तों के स्वभाव को भी जाना है। फिर हम सभी ने पिछले 17-18 साल दिन रात इस बात पर मेहनत की है कि कैसे इस मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट को आसान से आसान बनाकर आपको दिया जाए। After listening to all this, here are three simple actionable steps you can begin with. Number one, आप pause करें and name करें what you're feeling. At least once a day, stop for a minute and ask yourself, what am I feeling? Don't fix it, don't judge it, just name it. Whether it's anger, heaviness, irritation, calm, whatever it is. क्योंकि awareness is the first door. You can't change what you don't notice. Number two, express yourself, don't suppress. Pick one safe person. It could be a partner, a friend, a family member, or one of us, and share one real feeling instead of hiding it behind I am fine. Simple रखें. You can simply say, I feel hurt when this happens. या फिर I've been feeling a little disconnected lately because of this reason. Number three, shift focus from others to self. Next time you feel triggered or upset, pause and gently redirect. Instead of, they did this to me, ask, what is happening inside me right now? You can't control others, but your inner world is your real workspace. I hope today's discussion gave you a starting point to reflect on your inner state, and you can take small steps towards emotional well being. Thank you for being here and taking this time for yourself. Now, if you have any questions, feel free to WhatsApp us. We'll meet again very soon with another important conversation. We look forward to continuing this journey of learning and growth with you. Once again, thank you for joining us, for showing up for yourself, and for being a part of Sritara's community. Now, someone had requested us not to record your questions, so to maintain your privacy,